Now friends, this is one of the most important part, that what is grammar. So it's a very clearly written, grammar is the backbone of any language, not only backbone for English, but it is the backbone of every languages. So grammar is the backbone of language, and grammar denotes how to listen correctly, how to speak correctly, how to read correctly, and how to write correctly. The language has their four parts: listening, speaking, reading, and writing. So every language has their four parts only, and grammar corrects these all. So how to listen correctly, how to read correctly, and how to write correctly. Now friends, so it's written listening, speaking, reading, writing. So language has their four parts and you can correct with this all. So there are 5 parts of grammar. Grammar के कितने parts होते हैं? 5 parts होते हैं. Orthography, etymology, syntax, punctuation and prosody. So friends, now you'll have to understand what is the orthography, what is the etymology, what is the syntax, what is the punctuation. So what is the orthography? Orthography is about alphabets and letters. So there are 26 alphabets in English, is called orthography. Alphabets is what? Orthography. Second is what? Etymology. What is this etymology? Etymology is the word and words. Friends, alphabet से words बनता है, right? And what is the syntax? Syntax is the sentence. What is a sentence? Sentence is what? Combination of words. Words is what? Combination of alphabets. So you can consider alphabets as a bricks. जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, bricks. तो alphabets क्या है? bricks है. bricks से हम क्या बनाते हैं? words बनाते हैं. 2 4 5 alphabets को जोड़ के, और जब हम 2 4 5 10 words लगा देते हैं तो sentences हो जाता है. What is the punctuation? Punctuation is the sign of mark. Sign of mark है, इसको बोलते हैं चिन्ह विचार. Without sign of mark आप किसी भी sentence को आगे नहीं लिख सकते. And what is the prosody? Prosody is the stanza, paragraph sort of story. तो आप अच्छी तरह से समझिए, एक अल्फाबेट से क्या बनता है? वर्ड्स. वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस. सेंटेंस को कब तक आगे नहीं लिख सकते? जब तक हम साइन ऑफ मार्क नहीं लिखेंगे. और साइन ऑफ मार्क जैसे ही देते हैं तो एक स्टेंजा हो जाता है, पैराग्राफ हो जाता है. और जब ये 2 4 5 पैराग्राफ मिलके एक स्टोरी हो जाता है, 2 4 5 10 20 25 स्टोरी मिलके एक बुक्स हो जाता है. सो दिस इज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामर. अब इसी के बेस पे अलग अलग है कि हम उसको किस तरह से समझते हैं. अगर आपको लगता है कि हमें समझने में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं. हमारे डिस्क्रिप्शंस में इसके PDF दिए हुए हैं. और वी आर विद द वेरी गुड सिस्टम ऑफ दैट इज कॉल्ड द ऑडियो वीडियो सिस्टम. सो फ्रेंड्स, मैं आज अपने बैक ऑफिस टीम को बोलता हूं कि इसमें आपको ये कोर्स अगर ज्वाइन करना है, जो कोर्स हमने आपके लिए अवेलेबल किया है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप एक कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, सो नाउ so what is the orthography? In this part we study about alphabets and letters. There are 26 alphabets in English, is called orthography. I think it is visible, right? So there are 3 kinds of written form of alphabets. What is that? Capital letter, small letter and cursive letter. So these 3 types of writing of any alphabets. हिंदी में इसको बड़े अक्षर कहते हैं, छोटे अक्षर कहते हैं, घुमावदार अक्षर कहते हैं, right? So there are 2 parts of alphabets. अब alphabets के कितने parts होते हैं? 2 parts, vowels and consonant. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे जाकर के आपको समझना है vowels और consonant के बारे में. vowel और consonant क्या करता है? अब ये जो vowels है इसको हम हिंदी में स्वर कहते हैं. A E I O U को क्या कहते हैं? vowels कहते हैं. और consonant किसको कहते हैं? रिमेनिंग जो 21 है उसको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कह सकते हैं. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट्स. वन इज वॉवेल्स, अदर इज कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन. इसी के ऊपर में सब बेस है, राइट? सो स्लोली इन स्टडी विल अंडरस्टैंड लिटिल एंड द अहेड. फ्रेंड्स,
my purpose is very clear to make you the fluent speaker of English. So second is what? Etymology. In this part, we study about sentence and sentences is called etymology. A group of words is the sentence. A group of alphabets is what? Words, right? So what is the syntax? Syntax, vakya vichar. In this part, we study about sentence and sentences is called vakya vichar, syntax. Now what is the third? Third is what? About the sentences. What is the sentence? A group of words which give complete meaning or meaningful sense is called sentences. Sentences क्या है? जिससे आपको पता चलता है कि ये सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ क्या है. तो एक अल्फाबेट से वर्ड्स बनता है, एक वर्ड से सेंटेंस बनता है. और सेंटेंस को आप कब तक आगे नहीं लिख सकते? जब तक इसमें हम फुल स्टॉप, कॉमा, साइन ऑफ मार्क्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं लिख सकते. तो इससे क्या होता है? जैसे हम फुल स्टॉप देते हैं तो हम दूसरे सेंटेंसेस लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज आर गोइंग आउट, दे विल बी बैक. सो this full stop allowing you to write a next sentence. So what is the prosody? In this part we study about stanza, paragraph, sort of a story is called prosody. So for example, एक अल्फाबेट से क्या बना? वर्ड्स. वर्ड से क्या बना? सेंटेंस. सेंटेंस को कब आगे लिख सकते हैं? पंक्चुएशन से. और प्रोसोडी से एक स्टेंजा, पैराग्राफ, सॉर्ट ऑफ स्टोरी बनता है. तो इट इज अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ ग्रामर. अब ग्रामर क्या है? इसी को हम पूरा ग्रामर कहते हैं. एक अल्फाबेट से वर्ड्स, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, और 2, 4, 10 पैराग्राफ बना करके एक स्टोरी हो जाता है. 10-20 स्टोरी मिला करके एक बुक हो जाता है. हमारा स्पीच भी ऐसे ही, जब हम 2 मिनट बोलते हैं तो कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, कुछ ज़्यादा देर बोलते हैं तो स्पीच हो जाता है. फ्रेंड्स, मैं ये टॉपिक को एक स्लोली एंड स्टडी एक 7 पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ, जो 7 चैप्टर है. और मैं हर एक चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ. इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम एक ऐसे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो हमें नहीं पता है कि इसके ना होने और होने से हमारे इंग्लिश में क्या अंतर आता है. तो आज मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, एक बेसिक इंट्रोडक्शंस में यही समझाना चाहता हूं कि अगर आप अपने ज़िंदगी में एवरीडे हाफ एन आवर देते हैं और आधे घंटे में अगर आप कुछ ऐसे चीज़ को समझते हैं जहां पे आपको लगता है कि इसके बिना हमारे इंग्लिश का कुछ सर्टेन भाग अधूरा है और आप अगर उसको पूरा करना चाहते हैं, तो ये स्पीक नाउ इंग्लिश उस चीज़ को पूरा करेगा. आप जहां हो वहीं से इसको स्टार्ट कर सकते हैं. मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इंग्लिश फ्लुएंट नहीं बोल सकते, बट मैं ये ज़रूर कहता हूं कि अगर आप ये ग्रामर को कर लेते हैं जो बेसिक है, मुश्किल से एक 7 चैप्टर को मैं अप्रॉक्सीमेट 3 से 3.5 घंटे में एवरी डे मैं एक हाफ एन आवर का आपको एक ऑडियो वीडियो सिस्टम देने वाला हूं. अगर आप इसको 7 दिन सुन लेते हैं, 7 दिन देख लेते हैं, तो 7th डे मैं आपको एक गारंटी देता हूं दैट यू विल बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश. मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज फिर क्या होता है, आप उस चीज़ को उस तरह से नहीं समझते. आप इसको आप एक लेक्चर समझें, बिकॉज आज के तारीख में सोशल मीडिया पे इतना ओवरलोड कंटेंट हो गया है, इतना ओवरलोड कंटेंट है कि इंग्लिश सिखाने वाले का एकदम तांता लगा हुआ है. जो ब्लॉग बनाते हैं, जो यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से पेस्ट करते हैं और अपने आप को क्लेम करते हैं, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ टीचर. अभी तो हमने, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी वन, बट आई एम सीइंग द पीपल how they are making blogs, how they are making the videos, that it's a very not able to watch even the videos because they are saying ग्रामर ये नहीं करता, ग्रामर वो नहीं करता, ग्रामर इस तरह से नहीं करता. आप अगर पढ़ाई लिखाई किए हो, आपके ज़िंदगी में आपको पता है ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंस है. हम किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. हम किसी भी ऐसे जो ट्रेनर हैं, टीचर हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बट अगर वो किसी चीज़ को क्लेम करते हैं तो मैं उनको भी ये लेसन्स नहीं दे रहा हूँ. बट मैं अपने आप में बीइंग एज अ टीचर, बीइंग एज अ प्रोफेसर, मैं आपको कहना चाहता हूँ everything is important in your life to become a fluent speaker of English. You'll have to understand the basic concept of grammar, right? तो मैं every day इस चीज़ के बाद
हर एक चैप्टर के बाद, ये 7th चैप्टर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें टोटल जो स्लाइड्स है ये 55 स्लाइड्स है। तो इसके बाद जो अगला स्लाइड्स है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे स्लाइड्स को, ये 55 स्लाइड्स को हमने आपको एक 7 डेज में कन्वर्ट किया है। जो अगला चैप्टर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर आप सिर्फ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जाते हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने इतना क्रिस्प बनाया है कि आप उसको एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल में लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंग्लिश बोलना नहीं आ जाएगा, बट जो स्पीच का हिस्सा, इसका वर्ड्स है स्पीच, जब हम स्पीच बोलते हैं तो इसके बिना स्पीच भी नहीं बनेगा। जब आप एक सेंटेंस देखोगे, सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन अगर आप नहीं कर पाओगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर क्या है, अगर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दुनिया में कितने तरह के आदमी हैं, कितने तरह के आदमी के ऊपर में बोल सकते, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। लेकिन आप अगर ये कर लेते हो तो इसके साथ भी इंग्लिश नहीं आ सकता, दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही सिंपल है। जो मैं आपको एक कोशिश करता हूँ कि मैं समझाऊँ कि किस तरह से आप आज इंग्लिश बोलेंगे, बिकॉज एवरी लेक्चर के लास्ट में हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि आप इंग्लिश इसी लेक्चर में सीखेंगे, और किस तरह से सीखेंगे वो मैं आज आपको बताता हूँ। मेरा सिंपल कहना है कि अगर आपके ज़िंदगी में, मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो ये दुनिया में कितने तरह के आदमी वो भी मैं बता देता हूँ। दुनिया में यही 12 तरह का आदमी होता है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दो, दिस। उसी तरह से अगर आपने ज़िंदगी में ये 12 सेंटेंसेस समझ लिए तो आपको इंग्लिश बोलना आ गया। सिंपल 12 सेंटेंस। आज इस चीज़ का पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा क्या है ये 12 सेंटेंस। जो पहला, जो आज तक आपने सुनते आया है कि टेंस आपको टेंशन देता है, इसको हिंदी में हम काल कहते हैं। काल का अर्थ होता है जिसमें तीनों भाग का पता चले, जिसमें प्रेजेंट का भी पता चले, जिसमें पास्ट का भी पता चले, और जिसमें फ्यूचर का भी पता चले। अगर हम इसमें एक सिंपली ये चीज़ कहते हैं कि अगर प्रेजेंट है तो क्या है, पास्ट है तो क्या है, और फ्यूचर है तो क्या है, तो आपको अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। प्रेजेंट के हिंदी में हो लगा होता है, पास्ट के हिंदी में थौ लगा होता है, और फ्यूचर के हिंदी में गौ लगा। तो वैसे आइडेंटिफिकेशन बहुत सारे हैं चूंकि हम हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्स करते हैं। तो यहाँ पे 4 ही सेंटेंस होता है प्रेजेंट में, 4 ही सेंटेंस होता है पास्ट में, और 4 ही सेंटेंस होता है फ्यूचर में। अब ये सेंटेंस क्या होता है अच्छी तरह से आप देखिए। ये जो सेंटेंस होता है सिंपल है, आई गो टू मार्केट। इसका अर्थ क्या है, मैं बाजार जाता हूं। आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। और जो दूसरा सेंटेंस है, आई गो टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। MKT इज द सिंबल ऑफ मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। पहला क्या है, मैं बाजार जाता हूं। दूसरा क्या है, मैं बाजार जा रहा हूं। अब तीसरा क्या है, तीसरा है आई हैव गॉन टू मार्केट। तीसरा क्या है, मैं बाजार जा चुका हूं। तीसरा क्या है, मैं बाजार जा चुका हूं। आपको समझना है, मैं बाजार जा चुका हूं। पहला क्या है, मैं बाजार जाता हूं। दूसरा क्या है, मैं बाजार जा रहा हूं। तीसरा है, मैं बाजार जा चुका हूं। और चौथा क्या है माय डियर फ्रेंड, चौथा है मैं 2 घंटे से बाजार जा रहा हूं। मीन्स आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। यानी इसका अर्थ क्या है, मैं 2 घंटे से बाजार जा रहा हूं। मीन्स क्या है, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार
जा रहा हूं, मैं बाजार जा चुका हूं और मैं बाजार 2 घंटे से जा रहा हूं। अब इसी तरह से मैं सिर्फ लिखता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा। मैं आज पास्ट नहीं लिखता हूं, आज हम प्रेजेंट में हैं तो आज हम प्रेजेंट पढ़ते हैं, और जब हम अगले लेक्चर में रहेंगे तो मैं पास्ट का बताऊंगा, लेकिन आज मैं बता जाता हूं। पहला क्या होता है, मैं बाजार जाता था। दूसरा क्या होता है, मैं बाजार जा रहा था। तीसरा क्या होता है, मैं बाजार जा चुका था। और चौथा क्या होगा, मैं 2 घंटे से बाजार जा रहा था। मीन्स आई went to market, I was going to market, I had gone to market, I had been going to market for 2 hours। और मैं वीडियो के टाइम में बताऊंगा कि इसका भी डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा आपको, आप इसको भी लोड कर सकते हैं। और फ्यूचर में क्या होगा आप अच्छी तरह समझिए। फ्यूचर क्या होता है, ब्राइट होता है फ्रेंड। तो फ्यूचर को हम व्हाइट से लिखते हैं, ब्राइट लिखते हैं। सो व्हाट इज अ ब्राइट, फर्स्ट आई शैल गो टू मार्केट और आई विल गो टू मार्केट। आजकल हम शैल और विल को एक साथ यूज कर सकते हैं। जनरली शैल को हम फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर में यूज करते हैं। आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं। अगर आप चाहें तो आई और वी के साथ भी विल यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, आई विल गो टू मार्केट। दूसरा क्या होता है, आई विल बी गोइंग टू मार्केट। तीसरा क्या होता है, आई विल हैव गॉन टू मार्केट। और चौथा क्या होता है, आई shall have gone to market for 2 hours। तो हम यहां पे shall भी लगा सकते हैं और will भी लगा सकते हैं। तो पहला क्या होगा, I shall go to market, I shall be going to market, I shall have gone to market, I shall have been going to market for 2 hours। अगर आप बोलना चाहते हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, I will go to market, I will be going to market, I will have gone to market, I will have been going to market for 2 hours। पहला क्या है, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जा रहा हूंगा, मैं बाजार जा चुका हूंगा, मैं 2 घंटे से बाजार जा रहा हूंगा। तो अगर आप ये यहां का 4 और यहां का 4 और यहां का 4 अगर आपने ये कर लिया, 4 × 3 ये 12, तो आप हो जाएंगे फ्री और आपके जिंदगी में ये जो टेंस का टेंशन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं लास्ट में एक वर्ड्स कहना चाहता हूं आज कि टेंस और टाइम में बहुत अंतर है। टाइम मीन्स किसी एक वक्त को जो बताए उसको टाइम कहते हैं। मीन्स अगर ये टाइम है तो प्रेजेंट है, सिर्फ प्रेजेंट है। अगर ये टाइम है तो पास्ट है, और अगर ये टाइम है तो फ्यूचर है। अच्छी तरह समझिए। बट जब हम टेंस कहते हैं तो टेंस में तीनों का बोध हो जाता है, प्रेजेंट का भी होता है, फ्यूचर का भी होता है और पास्ट का भी होता है। राइट फ्रेंड? So today with these all things, I really wish you one of the best understanding of your career to become a fluent speaker of English. And I wish you all the best. Bye bye. Take care. And you should be fluent speaker of English. If you have anything, the link is given below for your PDF, for your course, for your whatever queries is there, you can contact with us. So I wish you all the best to become a fluent speaker of English. Thank you very much.